Hello everyone, welcome to the YouTube channel Developing Mathematical Minds. This is the lecture for class 11th. We were doing trigonometry and today what we will do an important result. This is a result which we will prove today, and we'll do few questions related to this result. This is very important result from competitive exams point of view. MCQs may come from this result. So let us prove this result. We are having the result that cos A multiplied by cos 2A multiplied by cos 2 to the power 2A into cos 2 to the power 3A up to so on cos 2 to the power n minus 1 into A equals to this. इसको यूज कैसे करना है बाद में करेंगे, पहले इसका प्रूव कर लेते हैं. I am taking the left hand side and what I am doing, I am writing cos A into cos 2A into cos 2 to the power 2A into cos 2 to the power 3A up to so on cos 2 to the power n minus 1 into A. What I am doing, I am multiplying this by 2 sin A. If I am multiplying this by 2 sin A, so I have to divide it by 2 sin A as well. That means what I have done, I have multiplied and divided by 2 sin A in the left hand side. In the left hand side, I have multiplied and divided by 2 sin A. Now what this will give me? This will give me this. This is 2 sin theta cos theta. 2 sin theta cos theta is sin double angle. So I will write 1 upon 2 sin A multiplied by this will be sin 2A. Sin 2A, then cos 2A, then cos 2 to the power 2A up to so on cos 2 ये वैल्यू बढ़ती रहेगी 2 की पावर 2 then 2 की पावर 3 then 2 की पावर 4 up to so on cos 2 to the power n minus 1 into A. अब यहां पर फिर से देखो जो साइन का एंगल है वही कॉस का एंगल है. नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2. तो आई एम मल्टीप्लाइंग हियर बाय 2 एंड डिवाइड मल्टीप्लाइंग हियर बाय 2. व्हाट आई विल गेट नाउ दिस विल बी कंबाइंड. दिस विल बिकम 1 upon 2 to the power 2 sin A bracket this will be sin 4A. Sin 4A को I can write sin 2 to the power 2. Sin 4A को I can write this will become sin 4A sin double angle 4A को I will write 2 to the power 2 because we are having here cos 2 to the power 2A. After that there will be cos 2 to the power 3A because ऊपर भी था cos 2 की power 3A up to so on लास्ट में आ गया cos 2 to the power n minus 1 into A. Now अगेन यहाँ पर फिर से तैयार हो गए तो फिर से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे. तो इन द सेम वे ऐसे चलते चलते हम कहां पहुंचेंगे, ऐसे चलते चलते भाई देखो जब यहां पर साइन आया फिर इंटू 2 करेंगे तो sin 8a बन जाएगा. sin 4a का डबल sin 8a मतलब sin 2 की पावर 3 है, ये रहा cos 2 की पावर 3 है. दैट मींस जो भी मेरे पास साइन है बनता जाएगा उसके लिए मेरे पास cos का वो एंगल पहले से ही तैयार है सो दैट वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 एंड आई विल गेट sin डबल एंगल. तो हमें यहां तक पहुंचना है, यहां तक. तो सबसे लास्ट स्टेप क्या होगा, जनरल व्हाट आई विल गेट इन जनरल व्हाट आई विल गेट अप टू सोने चलते चलते क्या होगा 1 अपॉन. अब मैं यहां से जनरल चेक करना है कैसे, देखो कैसे पता लगेगा. हमें पहुंचना है लास्ट में क्या रहेगा, लास्ट में रहेगा cos 2 to the power n minus 1 into A रहेगा लास्ट में ये है. तो जब ये cos का है तो होते होते मल्टीप्लाई होते होते मुझे यहां पर साइन मिलेगा sin 2 to the power n minus 1 into मतलब cos का जो एंगल होता है वही एंगल प्रीवियस बनता है. तो जब लास्ट में cos 2 to the power n minus 1 into A होगा तो उसके साथ सबसे लास्ट में मुझे क्या मिलेगा sin 2 to the power n minus 1 into A मिलेगा. और बाहर मुझे क्या मिलेगा, व्हाट आई विल गेट आउटसाइड, आई विल गेट 1 अपॉन. अब देखो जब यहां पर 2 की पावर 2 था तो यहां पर 2 की पावर 2 आया. जब यहां पर sin 2 था तो यहां पर 2 की पावर 1 था. जब ये नहीं किया था हमने यहां पर sin into cos तो यहां पर 2 की पावर 1 था. तो इन जनरल जब यहां पर sin की जो पावर आ रही है वही पावर यहां आ रही है तो इन जनरल यहां पर आएगा 2 to the power n minus 1 into sin A into sin, क्योंकि sin A जो है हर स्टेप पे sin A है, sin A is sin A in each and every step. So what I have got whenever in the last I'll be having cos 2 to the power n minus 1 into A लास्ट में होगा तो उसके साथ sin का ये एंगल बनेगा. क्यों, जब cos 2 की पावर 2A था तो sin 2 की पावर 2A बना, जब cos 2A था तो sin 2A बना. इस तरीके से जब लास्ट में cos 2 की पावर n minus 1 into A है तो sin 2 की पावर n minus 1 into A बनेगा. और जब ये बनेगा तो 1 अपॉन में 2 की पावर क्या होगी, 2 की पावर 2 यहाँ पे 2 की पावर 2 थी, 2 की पावर 1 में यहाँ पे 2 की पावर 1 थी तो यहाँ पर क्या हो गया 2 की पावर n minus 1. नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2. दैट विल गिव मी 1 अपॉन, this will be combined, so I will get 2 to the power n
sin A in the denominator multiplied by this is 2 sin theta cos theta, 2 sin theta cos theta, sin double angle, sin double of 2 to the power n minus 1 into A. So what I will get? I will get that as sin 2 to the power n minus 1 into 2 to the power 1. So sin 2 to the power n into A upon 2 to the power n into sin A. This is the right hand side. This is the right hand side. So this is the proof of this result of this question, we can say, which is there in R.D. Sharma also. Now, what is the application of this result? We will do by few questions. And what does this theorem says? This question says, this result says, ये कहता है कि अगर cos में कोई ऐसा पैटर्न बन रहा है जिसमें किसी फर्स्ट एंगल को a मानने पर वो 2 का मल्टीपल फिर 2 की पावर 2 2 की पावर 3 बनेगा, तो जो आंसर आएगा दैट विल बी sin 2 टू दी पावर n, जो लास्ट में 2 की पावर बनेगी उस पावर से एक ज्यादा यहां पर आएगा. मेन बात ये है, लास्ट में जो cos 2 की पावर में जो भी वैल्यू बनेगी इनटू में a, तो यहां पे sin 2 टू दी पावर क्या आएगा उस पावर में से एक ज्यादा, और वही 2 टू दी पावर सेम अपॉन इनटू साइन. जैसे फॉर एग्जांपल आई एम डूइंग वन क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज cos pi by 7, cos 2 pi by 7 and cos 4 pi by 7. This is the question. We have to evaluate this. We have to evaluate this. We can evaluate this by this result. Very important. We can use this result to evaluate this. How? If I am assuming this as A, if I am assuming A as pi by 7, then this is 2A and this is 4A. 4A मतलब 2 to the power 2. If I am assuming A as a pi by 7, then this is cos A, cos 2A and cos 2 to the power 2A. This we are getting. That means what I am getting? I am getting cos A, cos 2A, cos 2 to the power 2A. This I am getting. Now, अब यहाँ पर cos A, cos 2A, cos 2 की पावर 2, 2 की पावर n minus 1 a तक है. मैंने क्या बताया कि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? ये तो पावर n की टर्म में है, तो इसका आंसर क्या होगा? जो भी 2 की पावर लास्ट में है, जो भी 2 की पावर लास्ट में है उससे एक ज्यादा पावर. जैसे 2 की पावर 2, तो आई विल राइट sin 2 to the power 3 into a. 2 की पावर 2 लास्ट में है, तो आई विल गेट 2 to the power 3. 2 to the power n minus 1 लास्ट में था, तो आई एम गेटिंग 2 to the power n. डिवाइड बाय 2 to the power n. n मतलब यहां पर वही पावर जो ऊपर है वही रहेगी, 2 to the power 3 into sin a. इस वाले क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लग जाएगा. तो आई एम यूजिंग इट हियर, तो आई विल गेट cos 2 to the power 3. तो cos 2 to the power 3 into a. a is pi by 7 डिवाइड बाय 2 to the power 3, सॉरी cos नहीं sin, sin 2 to the power 3a, sin 2 to the power 3a, a is pi by 7 upon 2 to the power 3 into sin a is pi by 7. Now this will become sin 8 pi by 7, sin 8 pi by 7 divide by 8 sin pi by 7. Now sin 8 pi by 7 को I will break as sin pi plus pi by 7 divide by 8 sin pi by 7. Now sin pi plus theta, here pi plus मतलब थर्ड में साइन क्या होता है? नेगेटिव. दैट मीन्स माइनस sin pi by 7 upon 8 sin pi by 7. This cancelled out. Answer is minus 1 by 8. So the value of this what we have to get is minus 1 by 8. This is the question. Now इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और बनता है, वो क्या है? क्वेश्चन इज, आई एम राइटिंग हियर, क्वेश्चन इज cos pi by 7 into cos 2 pi by 7 into cos 3 pi by 7. ये आ गया क्वेश्चन. ये क्वेश्चन डिट्टो उठ के इसी से उठ के आ जाएगा. थोड़ा चेंज हो सकता है, जैसे कि ये है. ये क्वेश्चन क्या बन रहा है? cos A, cos 2A, cos 2 की पावर 2A नहीं बन रहा है भाई. cos A है, cos 2A, लेकिन cos 2 की पावर 2A नहीं है. बट cos 3 pi by 7 को I can write as cos pi minus 4 pi by 7. We can do, because 7 pi minus 4 pi is 3 pi by 7. Pi minus 4 pi by 7 means 7 pi minus 4 pi. That means I can break 3 pi by 7 as pi minus 4 pi by 7. Now cos pi minus theta, pi minus मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में cos क्या होता है? नेगेटिव. So this will be minus cos 4 pi by 7.
तो ये जो माइनस आएगा ये सब है मल्टीप्लाई, तो माइनस बिल्कुल बाहर, तो क्वेश्चन बिकम्स माइनस कॉस पाई बाय 7 कॉस 2 पाई बाय 7 कॉस 4 पाई बाय 7। इसका मतलब ये जो कॉस 3 पाई बाय 7 होता है ये माइनस कॉस 4 पाई बाय 7 के इक्वल होता है। नाउ अब ये जो ये क्वेश्चन अगर हम देखें ध्यान से तो ये क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन तो है, cos पाई बाय 7 cos 2 पाई बाय 7 cos 4 पाई बाय 7, इसको सिंपलीफाई करेंगे इन द सेम वे, आंसर क्या आ रहा है -1/8, तो माइनस ऑफ -1/8 विल गिव मी द वैल्यू एज 1/8, तो ये आंसर 1/8 इस क्वेश्चन का है और -1/8 इस क्वेश्चन का है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, अगर 4 पाई बाय 7 आया है तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, अगर 3 पाई बाय 7 है तो आई एम चेंजिंग दिस इनटू 4 पाई बाय 7 देन यूजिंग दिस result to get the answer. Make a note of this. So this is very important result and we have done 2 questions related to this. Now let us do one more question. Increase the, जैसे यहाँ पर 3 terms है, we can have 4 terms also. So let us do one more question related to this. And the question is cos 2 pi by 15 cos 2 pi by 15 cos 4 pi by 15 cos 8 pi by 15 cos 14 pi by 15 is equal to, we need to prove 1/16. This is to prove that this is equal to 1/16. अभी फिर से cos a cos 2a cos 2 की पावर 2 cos 2 की पावर 3 टाइप बनेगा, लेकिन उसको अच्छे से बनाएंगे कैसे। देखो अगर मैं इसको a मानता हूं, if I am assuming this is a, तो ये तो 2a बन रहा है, बिल्कुल ठीक है, इसका ट्वाइस, और ये 2 की पावर 2 भी बन रहा है, 4 into 2 पाई, बिल्कुल ठीक है, ये भी बन रहा है, लेकिन ये नहीं बन रहा है। इसका मतलब हो सकता है कि मैंने जिसको a माना है वही थोड़ा हो सकता है गलत हो, लेकिन cos 14 पाई बाय 15 को आई कैन ब्रेक एज cos पाई माइनस पाई बाय 15। चेक करते हैं, 15 पाई माइनस पाई 14 पाई बाय 15 बन गया, और cos पाई माइनस थीटा 0 पाई बाय 2 पाई, सेकंड में cos क्या होता है नेगेटिव, तो दिस इज माइनस cos पाई बाय 15। दैट मीन्स ये जो cos 14 पाई बाय 15 है, दिस इज नथिंग बट माइनस cos पाई बाय 15। दैट मीन्स हमने a को गलत मान लिया। Now what I am doing, I am writing this cos 14 pi by 15, मैं इस cos 14 pi by 15 को लिख रहा हूं minus cos pi by 15. So the question becomes minus cos pi by 15 this into cos 2 pi by 15 into cos 4 pi by 15 into cos 8 pi by 15. This is the question. जो क्वेश्चन ये था cos 14 पाई बाय 15, जब माइनस cos पाई बाय 15 हुआ तो उसकी वैल्यू यहां पुट हो गई और ये तीनों चीजें यहां आ गई। अब ये क्वेश्चन बन रहा है, आई एम अज्यूमिंग दिस पाई बाय 15 एज a, दिस इज 2a, दिस इज 2 टू द पावर 2a एंड दिस इज 2 टू द पावर 3a। वी कैन चेक, अगर a जो है वो पाई बाय 15 है तो 2 पाई बाय 15 4 पाई और 8 पाई बाय 15, दैट मींस 2a, 2 की पावर 2a, 2 की पावर 3a। अब फिर से वही बात, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है sin 2 टू द पावर, इसमें एक ज्यादा तो 4 into a अपॉन 2 टू द पावर 4 into sin a। तो लेट अस अप्लाई दिस, आई विल गेट sin 2 टू द पावर 4 is 16 एंड व्हाट इज a is पाई बाय 15, तो 16 पाई बाय 15 डिवाइड बाय 16 sin, और ये है माइनस का तो यहां भी माइनस ही आएगा, बिकॉज ये माइनस का है तो आंसर में यहां माइनस आएगा, और यहां भी जो हम आंसर ला रहे हैं वो माइनस का ही आएगा क्योंकि माइनस स्टार्टिंग से चल रहा है। 16 sin पाई बाय 15। नाउ आई विल ब्रेक दिस एंगल एज पाई प्लस, जैसे कि हमने हर क्वेश्चन में करते हैं, तो माइनस साइन पाई प्लस पाई बाय 15 डिवाइड बाय 16 sin पाई बाय 15। दिस विल बी माइनस साइन पाई प्लस मतलब थर्ड में साइन होता है नेगेटिव, माइनस ऑफ माइनस साइन पाई बाय 15 डिवाइड बाय 16 sin पाई बाय 15। माइनस माइनस प्लस साइन पाई बाय 15 कैंसिल, तो आंसर आ गया 1/16 विच इज द राइट हैंड साइड।
और ये क्वेश्चन इवैल्यूएट करने को आ सकता है कि इवैल्यूएट दिस, हमारे पास एक एमसीक्यू होगा, इवैल्यूएट टाइप से क्वेश्चन आ सकता है. सो वी कैन यूज दिस रिजल्ट. सो दिस रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी कैन यूज दिस रिजल्ट दैट cos a cos 2. बस एक बात, मेन बात समझने वाली है, जो cos में 2 की पावर में जो लास्ट टर्म बनेगी 2/3 या 2 की पावर 2, sin 2 की पावर में उससे एक ज्यादा पावर आएगी, वन मोर देन द पावर विच इज देयर इन cos एट लास्ट. जो सबसे लास्ट में cos की 2 की पावर में जो है उससे एक ज्यादा पावर यहाँ पर आएगी sin 2 की पावर में, और वही नीचे जाएगी और sin into दैट एंगल बन जाएगा. सो दिस वाज द क्वेश्चन. नाउ लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन. I'm rubbing this. Let us do one more question, then we will do the next. The question is sin pi by 14, sin 3 pi by 14, sin 5 pi by 14, sin 7 pi by 14, sin 9 pi by 14, sin 11 pi by 14, sin 13 pi by 14 is equal to, I need to prove 164, 1/64. This we need to prove. This is the question which we need to prove. I am taking the left hand side. सबसे पहले कुछ बातें यहीं पर कर लेते हैं ठीक से. कैसे? देखो बेटा, sin 7 pi by 15 is nothing but sin 90. तो ये तो वैसे ही 1 हो गया. अब इन तीनों को हम इसमें ब्रेक करेंगे. pi by 14 ये. I can write this as pi minus pi by 14. I can write this as pi minus 3 pi by 14. And I can write this as pi minus 5 pi by 14. पहले ये तीन एंगल ब्रेक हो गए. और साइन सब में साइन है, और हमने पढ़ा है साइन पाई माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा. Because pi minus pi is here, pi minus second quadrant, second में sin क्या होता है? Positive, और pi में no change. That means sin 13 pi by 14 is sin pi by 14. तो ये बन जाएगा sin pi by 14. ये बन जाएगा sin 3 pi by 14. And this will be sin 5 pi by 14. These three values. और यही तीन वैल्यूज यहां पर भी है. pi by 14, 3 pi by 14 and 5 pi by 14. और ये sin 7 pi by 14 is sin pi by 2 which is 1. So this is 1. ये whole square, this whole square, this whole square. So the question क्या बन गया? Question बन गया sin pi by 14 into sin 3 pi by 14 into sin 5 pi by 14 raised to the power 2. Raised to the power 2. ये तीन बार है, ये तीनों बार ये सेम है, और ये बन गया 1. sin 90 is 1. This is 1. So इतना बड़ा जो क्वेश्चन था वो इतने छोटे में चेंज हो गया. मेरे पास 7 टर्म्स थी जिसमें से एक टर्म 1 हो गई, बाकी ये 3 टर्म मिलके स्क्वायर बना दिया उसको. अभी क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो गया. जितना बड़ा क्वेश्चन लगा तो क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो गया. नाउ वी कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको साइन को कॉस में चेंज करना है. और साइन और कॉस में कैसे चेंज करते हैं? अगर मुझे साइन थीटा है, आई नीड टू चेंज इनटू कॉस, तो आई विल राइट कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा. साइन को अगर मुझे कॉस में चेंज करना है तो ये जो एंगल है इस एंगल को 90 से माइनस करना पड़ेगा. साइन थीटा इज कॉस 90 माइनस थीटा. तो यूज इट हियर. आई विल राइट कॉस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय कॉस पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय कॉस पाई बाय 2 माइनस 5 पाई बाय 14 whole to the power 2. I have written all the sign into cos followed by pi by 2 minus that angle. करना ही होता है. साइन थीटा को अगर साइन और कॉस में चेंज करना है तो एंगल को 90 से माइनस करना पड़ेगा. आइडेंटिटी हमने पहले ही पढ़ी है दैट cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा. साइन को यहाँ पर cos पर क्यों चेंज किया है? ताकि वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ cos जो हम कर रहे हैं. ठीक है. तो दिस विल गिव मी एलसीएम आएगा इसका 14 एलसीएम आएगा. 14 एलसीएम तो 7 पाई माइनस 14 पाई 6 पाई बाय 14. यहां पर रफ में कर लेते हैं इसको. पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 14 पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 14 एंड पाई बाय 2 माइनस 5 पाई बाय 14. यहां से एलसीएम आएगा 14 7 पाई माइनस पाई 6 पाई बाय 14 मतलब 3 पाई बाय 7. तो ये बन गया cos 3 पाई बाय 7. देन cos इसका एलसीएम आएगा 14 तो 7 पाई माइनस 3 पाई 4 पाई बाय 14 is 2 पाई बाय 7 and this will be
14 LCM 7 pi minus 5 pi 2 pi by 14 that means pi by 7 ये अब देखो अगर मैं इसको रिवर्स करता हूं तो cos pi by 7 सबसे पहले कर लिया दिस cos pi by 7 को लिख लिया सबसे पहले देन cos 2 pi by 7 आ गया अब ये जो cos 3 pi by 7 ये फिर से प्रॉब्लम कर रहा है तो इस cos 3 pi by 7 को I can write cos 4 pi by 7 how because cos 3 pi by 7 will be cos pi minus 4 pi by 7 we can check 7 pi minus 4 pi 3 pi by 7 and cos pi minus theta is minus cos theta so this will become minus cos 4 pi by 7 so I have to write minus यही कर दो इस तरीके से माइनस एंड क्लोज ये जो cos 3 pi by 7 है दैट विल बी माइनस cos 4 pi by 7 ये रहा इसका रीजन cos 3 pi by 7 cos pi minus 4 pi by 7 minus cos 4 pi by 7 so the value of cos 3 pi by 7 is minus cos 4 pi by 7 cos 2 pi by 7 ये आ गया और cos pi by 7 ये आ गया अब मैं थोड़ा सा यहां से रब कर देता हूं so that I can solve the question here अब क्वेश्चन हो चुका है नो प्रॉब्लम इज देयर ये क्वेश्चन क्या बन गया अब ये पावर 2 है नेगेटिव की पावर 2 विल बी पॉजिटिव सो क्वेश्चन क्या बन गया क्वेश्चन बन गया cos pi by 7 cos 2 pi by 7 एंड cos 4 pi by 7 होल टू द पावर 2 और ये क्वेश्चन हमने अभी किया था कि अगर मैं इसको a मान लूं दिस इज a दिस इज 2a एंड दिस इज 2 to the power 2a दैट विल गिव मी sin 2 to the power 3 into pi by 7 divided by 2 to the power 3 into sin pi by 7 and this will be sin 8 pi by 7 this will be 8 pi by 7 so sin pi plus pi by 7 divided by 8 sin pi by 7 whole to the power 2 चल रहा है क्योंकि यहाँ भी पावर 2 है तो दिस इज माइनस sin pi by 7 अपॉन 8 sin pi by 7 whole to the power 2 दिस कैंसिल आंसर आ गया 1/64 इसके बाद तो क्वेश्चन वही जो हमने पहले किया हुआ है cos a cos 2a cos 2 की पावर 2a sin 2 की पावर ये जो पावर 2 है उसमें एक बढ़ गया 2 की पावर 3 into pi by 7 this is sin 8 pi by 7 pi plus pi by 7 minus sin pi by 7 this cancelled out जैसे कि हर क्वेश्चन में हो रहा है और आंसर आ गया -1/8 का स्क्वायर इज 1/64 which is right hand side so we did that important result and the few questions based on this result which is very helpful from competitive exam point of view and in CBSE also so in the next class in trigonometry what we will do the solution of trigonometric equation new topic जो एक टॉपिक रह गया था वो क्या था solution of trigonometric equation which we will do in the next class next video okay thank you